सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस यानी जो अब what you get from your parents. So any disease which we get it because of the X and Y chromosomes. We have seen that during the meiosis, the homologous chromosomes, they come together, they lie very close to each other, and there is a parental material getting exchanged. We have seen it in mitosis. So this is same thing happening over here. And what happens is that in these sex-linked diseases or sex-linked inheritance, this sex-linked inheritance is mostly found in the males. Females are only the carriers. Females are only the carriers. So here we can see that there is a heterozygous dominant of a couple was there. The mother is normal, but the father is a colorblind. Now, how do you don't know that it is a colorblind? We have seen we have seen that there is a circle over the X. Okay. Now, what happens when the gametes are formed? You get see the color blindness is a dominant characteristic over here. Okay, and that is why we have put a zero or a mark of dot on the X chromosome. Now, when the gametes are formed, it will be X and Y and XX. When you plot the Punnett square, you will find that there are two progenies which are daughters, but in daughters, you know that X, okay, the combination will become recessive. It will go on the recessive side, okay, and that is why the females are always carriers and males are always the. But here in this case, what has happened is that a normal son has been born because one of our X and Y gamete have not got that the same sex-linked inheritance. See, almost 200 diseases are there, which are generally found the girls to be the carriers, and hardly 20 or 22 diseases are there on which the Y becomes a carrier. Excuse me, sir. Yes, who is that? What is he want? Sir, Aditya, sir. Sir, hemophilia, does it comes in those 200 or those 20? Comes in the 200 one. Hemophilia, diabetes, your color blindness, thalassemia, they all come under the color blind that come under the X inheritance. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Uh, so this is nothing but the, as you know that when there is a homologous chromosomes like this, homologous chromosomes, they are very close to, when they are getting reduced, what is happening is that the X chromosome becomes a carrier. It doesn't show express itself in the girls. लाखों में एक ऐसी केस हो जाती है जिसमें गर्ल्स भी कैरियर हो सकते हैं, और यानी गर्ल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं. ओके, यानी X0 ये केस भी पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है. इट इज नॉट इन द रेगुलर केस. ओके, राइट. बट क्योंकि आई इसके ऊपर जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के ऊपर एक वीडियो आफ्टर दिस टुडे, अभी बहुत छोटा पार्ट रह गया है, तो उस वो हो जाने के बाद आई विल शो यू अ वीडियो on sex-linked inheritance of color blindness.
देन आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके. Yes, sir. The reason is that this particular thing requires a chalk and board explanation, which that gentleman has done it very nicely and shown it. So let us move further. This is a case number 2, which is given in your textbook, where there is a mother is a carrier, father is a normal. Okay. Sir, So can carry. you explain again the case? Who is this? Sir, Renuka. See, in case 1, you had a normal mother and a colorblind father. So when their progeny was born, when the gametes were plot X and Y, XX got X and X0 and XY. X got X and X0 and XY. That is why the daughters, you can see that here are becoming the carriers. Okay, none of the children in the is a color blind. कोई भी इसमें से कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल विजन वाले हैं और ये कैरियर हो गया है वो. ओके, बिकॉज दिस इज एक्स एक्स ना, तो एक्स एक्स हो गया तो वो सिर्फ कैरियर हो जाता है, वो एग्जिबिट नहीं करता अपने आप को. राइट. तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ऑलवेज गर्ल्स आर अ कैरियर, फीमेल्स आर कैरियर. यानी अभी देखो सेकंड केस में भी ऐसा ही है. मदर इज अ कैरियर मदर एंड फादर इज अ नॉर्मल फादर. गैमेट्स हमको मिले एक्स वाई और इसके गैमेट्स मिले हमको एक्स एक्स, X0X. तो पहली जो चाइल्ड उनकी बॉर्न हुई वो भी क्या हुई, कैरियर डॉटर हो गई, X0X बराबर. और दूसरा जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हो गया वो, क्योंकि X0Y, क्योंकि X0 क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये था, तो वो पहले आया और फिर यानी XY के साथ ये हुआ. फिर तीसरी बच्ची उनकी नॉर्मल हुई और चौथा बच्चा भी नॉर्मल हुआ. ओके. अब देखो, ये ट्राई करके देखो और मेरे को बताओ कौन करेगा ये ट्राई. फटाफट करो जल्दी और मेरे को बताओ क्या होगा. सर ये कौन से पेज नंबर पे? सर वो आखिर का थोड़ा कट हो गया. क्या क्या क्या? सर ऑन विच पेज नंबर इट इज? अरे जाने देना, सामने रखा है ना मैंने तेरे को ये. नहीं सर, सर उसका मैं आधा पार्ट कट हो गया है राइट साइड. अरे कुछ मत कर, सिर्फ भाई आधा पार्ट कट हो गया, पिछला सर पार्ट मैं कट हो ट्राई गया. तेरे को मिला एक वुमन दिए हुए वो जो कैरियर है, और एक बाप भी ये दिया हुआ वो कैरियर है. पुनेट्स प्लॉट कर, उन्होंने रखे भी है पुनेट्स. इतना भी नहीं समझता क्या? सर मैं ट्राई हाँ कर पार्थ. फर्स्ट वाले बॉक्स में एक्स और 0. पहले तो वो बता क्या गैमेट्स तूने क्या लिए. ऊपर एक्स लिया और नीचे X0 लिया कौन है. सा गलत, यही तो गलती की ना, यही तो गलती की ना. कलर ब्लाइंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताया मैंने. वो उसके गैमेट्स कहाँ पे आएंगे, ये पहले दोनों इसमें कहाँ पे लिखे थे उसके गैमेट्स. सर वो हाँ. फिर गैमेट्स आएंगे X0, सॉरी XY आएगा ऊपर, X0Y, और यहाँ पे नीचे आएगा X0. वर्टिकल लाइन पे आएगा X0 और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा ऊपर X0Y. ये उसके गैमेट्स आ गए. अभी करो पुनेट और बताओ मेरे को क्या आ रहा है. और यहाँ पे तुमको पॉसिबिलिटी मिलेगी लाखों में एक की, जिसमें फीमेल्स को भी अफेक्ट हो जाता है. इट इज हार्डली सीन इन लाख और 2 लाख में एक बंदी कैरियर हो जाती है वो. आया किसको करना, किसी ने किया क्या?
ट्राई किया है क्या ये, या मैं आगे चलूं? हाँ सर। हाँ, क्या आया भाई, क्या प्रोजनी क्या क्या आई, फिनोटाइप्स क्या क्या आए, और जीनोटाइप क्या क्या आया? अच्छा रहने दो, तुमको नहीं सर बताने का है तो मैं फेनोटाइप आगे। सर। सर वो फेनोटाइप से तो ठीक है bro। ठीक है, ट्राई करो अपने घर पे, ट्राई इट एट होम। सर किया था। Now here this is, we now move to the monohybrid ratio। ये मोनोहाइब्रिड रेशियो लिखते वक्त जैसे इन्होंने किया है वैसे भी एक तरीके से तुम कर सकते हो, और उसी को पुनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज्यादा पूछा जाता है। नाउ हियर व्हाट हैज हैपेंड इज दैट देयर आर टू plants, okay, there are two plants, and in that two plants there is a pure homozygous which has got flowers at the axillary place, okay, at the axillary bud the flower has grown, and there is another flower, another plant which has a flower which is at the terminal, that is at the top of the plant, इसको टर्मिनल बोलते हैं या अपाइकल बोलते हैं जिसको। तो वो है एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि ऑक्सिलरी बर्ड्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि 99.9% प्लांट्स में आपको लीव्स या फ्लावर्स, आपको मालूम है कि आपने 9th में पढ़ा है कि फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड शूट और लीव्स विच एक्ट एज अ फ्लावर। तो आपने अगर बोगनविला का प्लांट या कभी कहीं और कहीं कौन सा भी प्लांट देखा होगा, तो जहां पे नोड्स और इंटरनोड्स रहते हैं उस एरिया को वो वहां पे ऑक्सिलरी बर्ड्स तैयार हो जाते हैं। कुछ ऑक्सिलरी बर्ड्स लीफ में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये मैक्सिमम 99.9% सब प्लांट्स में यही देखा जाता है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कभी कभार बहुत रेयर केसेस में प्लांट को टर्मिनल एंड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई का जो सबसे ऊंची वाली प्लेस होती है, वहां जनरली ऑक्सिलरी बर्ड्स लीव्स में कन्वर्ट होते हैं, ना कि फ्लावर्स में। बड़े रेयर केसेस में आपको ऐसे मिलेगा कि वहां पे एट द टर्मिनल एंड्स देयर विल बी अ फ्लावर, ओके। तो ये रेसेसिव है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये कंट्रास्टिंग अलील है। तो ये प्योर इन्होंने लिया है उसको ऑक्सिलरी का ए का उन्होंने एब्रिवेशन लिया है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स वहां पे है, कहाँ पे, पेरेंट प्लांट में। ये लिखा है ना पेरेंट्स, ये आपको ऐसे ही लिखना होता है, पेरेंट्स ऑक्सिलरी फ्लावर कैपिटल ए, ये हो गया आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट। उसके पेरेंट्स है ए कैपिटल यानी उसके जीन्स है कैपिटल ए, उसका ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्मिनल फ्लावर। अब हम टी से नहीं शुरुआत करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि आपको कॉन्ट्रास्टिंग जब कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो तो जो आप लोगों ने डोमिनेंट का एब्रिवेशन लिया है उसी का शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करना होता है। तो ये हो गया स्मॉल ए रेसेसिव टर्मिनल फ्लावर्स, ये बहुत कम दिखते हैं इसलिए इसको रेसेसिव कहा गया है। अभी इसके गैमेट्स निकालेंगे हम लोग। तो इन्होंने गैमेट्स निकाले हैं ए और ए, बड़ा ए और बड़ा छोटा ए। ये देखो यहाँ पे गैमेट्स उन्होंने निकाल के रखे हैं। जो हम पुनेट में कर रहे हैं काम, वही काम ये लोग
आपको इस तरह से भी किया जा सकता है. प्लॉटिंग ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कैन बी डन. A and A. So how you have to match it? See my arrow very carefully how it is going. See my arrow where how it is going. Capital A will combine with the capital A. Okay, ये हो गया आपका A पहला प्रोजेनी हो गया. फिर दूसरा देखो कि capital A will also combine with small a. Okay, ये रहा तुम्हारा capital A will combine with small a, है ना. इमेजिन हाँ करो सर. आपने पुनेट स्क्वायर डाला हुआ है और ऊपर ए है और यहाँ पे ए है, तो ये जब ए जाएगा तो आपको क्या आएगा, एक ए आएगा, एक ए आएगा, एक ए आएगा और एक स्मॉल ए आएगा. तो अभी आपको वो पूछेंगे कि आपका फिनोटाइप आप बताओ. तो फिनोटाइप यानी आप जीन्स का कॉम्बिनेशन देख के ही बता सकते हैं, बता पाओगे कि ऑक्सिलरी कितने हैं आपके पास और टर्मिनल कितने हैं. तो कि कौन बता पाएगा? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी ऑक्सिलरी आर गोइंग टू बी देयर? ये 3 ऑक्सिलरी होने वाले हैं, एक सर प्योर, 3. एक होमोजाइगस प्योर, एक और 2 हेट्रोजाइगस, यानी एक होमोजाइगस डोमिनेंट और 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक टर्मिनल आएगा, यानी एक रेसेसिव आएगा आपका. बराबर. तो अगर तो आपको बोलेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या है. तो फिनोटाइपिक रेशियो है आपका 3 ऑक्सिलरी इज टू 1 टर्मिनल. तो आपका ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो 3:1. ये आपका हो गया फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, जिसको देख के आपने कहा कि भैया हाँ भाई 3 हमारे पास ऑक्सिलरी वाले हैं और एक हमारे पास टर्मिनल वाला है. अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक होगा 1:2:1. और आपको ये रेशियोज लिखने के बाद आपको लिखना होता है 1 प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव. ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो, जहां पे आपको क्या टाइप के जीन्स आपके पास है. तो आपके पास क्या टाइप के जीन्स है? आपके पास एक प्योर जीन वाला है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. वो आपके पास 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और आपके पास एक रेसेसिव है. इसी को मोनोहाइब्रिड रेशियो बोलते हैं. अब इसी को हम लेट अस पुट इट इनटू अ पुनेट स्क्वायर. अभी हम लोग फिर से वो हमारा टॉल और ड्राफ्ट वाला कॉम्बिनेशन लेंगे. तो पेरेंट क्या है? पेरेंट टॉल है, प्योर टॉल है, कैपिटल टी. और ममा क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ड्राफ्ट है, स्मॉल टी. डोमिनेंट का ही जो हम लोग ने एब्रिवेशन लिया है उसी का छोटा एब्रिवेशन हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए लेंगे. तो हम लोग ने पहले क्या किया, एक स्क्वायर निकाला, बड़ा स्क्वायर निकाला और उसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. अब जो डोमिनेंट था पेरेंट, वो हम लोग ने ऊपर कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया. और जब पुनेट फॉर्मेशन का सवाल आया तो F1 जनरेशन हमको निकालना है. पहले हमको क्या करने का है? पहले F1 जनरेशन निकालना है और फिर F2 जनरेशन. यानी F1 जनरेशन और F2 क्या है? ये फिलियल जनरेशन जो फर्स्ट आई थी, जो ग्रिगोर मेंडेले ने क्या किया कि पहले एक क्रॉस ब्रीड किया
और उसी क्रॉस ब्रीड को सेल्फ पॉलिनेशन किया। यानी मैं समझाता हूं यानी क्या किया। अगर उसने एक प्लांट लिया जो कि लेट अस से दैट एक टॉल प्लांट और एक ड्राफ्ट प्लांट लिया, यही एग्जांपल लेता हूं। तो पहले उसने क्या किया, पहले टॉल और ड्राफ्ट का उसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। उसमें से जो उसको प्रोजनी आई वो भी पी प्लांट की थी, तो वो हम देखेंगे वो कौन सी टाइप की पी प्लांट की थी। अब उसने क्या किया, उसी प्रोजनी को उसी के साथ क्रॉस पॉलिनेट किया और फिर उसको एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स मिले। वो थे उसके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो, और उससे उसने मोनोहाइब्रिड रेशो का सिद्धांत एस्टैब्लिश किया। अभी यही जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं उसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। We take two plants parents, one is a pure tall, that is pure tall, that is dominant homozygous dominant pure, or we'll take a contrasting characteristics, that is dwarfness. For that we use the abbreviation small t small t. So when we put a punnet, what we do is that we start plotting the progeny. First we take this small t and unite with this, and it will give you genotype capital T small t. As I told you, whenever you are writing the progeny's genomes, you have to write the dominant wala abbreviation first and then the recessive wala. This is called as recessive. So again he took small t, first small t, and then with it combined with the second tall t. Okay, so again he got capital T small t. Then again he took with this small t, and again he plotted capital T small t, capital T small t. Okay, now what happens is that everybody try doing it in your notebook, and I want now at least tell me the first generation क्या क्या आया है, इतना तो बता दो मेरे को. Will you do it in the notebook and just tell me? Yes, sir. Yes. Everybody, will you just do it in the notebook? Capital T, small t, small t. ये Yes, पहला sir. पुनेट, ये पहला पुनेट क्या क्या है, उसमें क्या आया है, फिनोटाइप कितने आए हैं, और क्या टाइप का फिनोटाइप आया है, और क्या टाइप का जीनोटाइप आया है. मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं और आई एम कमिंग टू द मीट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम यू ऑल पीपल. चलो फर्स्ट करो, मैं फिर आई हेल्प यू ओवर देयर. फटाफट. I want answers from everybody. I want answers. Okay, Sharanya, what is the answer? Sharanya? Very good. Dhanashri Ughle has written that it is all are hybrid. Okay. What hybrid? Which hybrid? Dhanashri, what it is? What do you want to say? Homozygous dominant or homozygous recessive or heterozygous dominant? See, you should use Sir, a correct word. homozygous dominant. All are homozygous dominant. How many agree with Dhanashri? All are homozygous dominant. No, sir, not all are homozygous dominant. Either I'll give you a clue. Either it has to be all Sir, are in the first generation, all are heterozygous. Very good, Renuka. Very good. In the first generation, the phenotype which you see, all are genotype you see, all are heterozygous dominant. All are heterozygous dominant. So tell me whether what is meant by heterozygous dominant, whether they will be dwarf or whether they will be the same tall. Correct? Tall. Dhanashri? Everybody agrees with that. Okay. Yes, sir. So what is their phenotypic ratio? Who can give their phenotypic ratio? Who can give phenotypic ratio?
Yes, Sharanya. Sir, 3:1. 3:1. 3:1, sir. 3 Three is to 1. is just see 3:1. 3 Yes, to 1. 3:1. Will it be 3:1 or 3:0? sir, 1. 1. Sir, 3:1. 3:1. Did you get three heterozygous dominant and one recessive? You tell me the genotypes that you have got. All you have got capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t. All four have got. All four are capital T and small t. No, sir. No, No? sir. No. Tell me what is Yes, it sir. then. You tell me what is it. Sir, one of them is So yes. both capital T. Okay, let me first try. Capital T, small t, small t, capital T, capital T, capital. No. Sir, The all answer, are all are okay. All are what, Renuka? Tell, better, tell. Homozygous dominant. Wait, Renuka was straight telling. All are. Okay, sir. Renuka, tell Baba, I'm waiting for your answer. sir, all are of same type and heterozygous. Yes, see, Saranya has written. All are capital T and small t. And they are all, that means they're all tall and they're all heterozygous dominant. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. गौरी समजलं Sir, का? Yes, sir. हा. सर मला तो रेशो कसा लिहायचा ते नाही कळालं. हा, रेशो कसा लिहायचा ते सांगतो तुला. आता हा रेशो किती आहेत? आपले 4 आहेत की नाही? हा. So we have got all tall. Have we got anything dwarf? No. So No, F1 जनरेशनचा रेशो काय असणार आहे फिनोटाइपचा? 4 tall versus nobody, therefore dwarfness. So 4:0. मग चारीच्या चारी हेट्रोझायगस डॉमिनंट आहेत. There is no anyone recessive. There is no anyone homozygous dominant. म्हणजे it will be 4:0. कळालं? हो सर. आता now what Mendele did was that he got this all four heterozygous dominant, all four tall. Now he crossbreeded these among themselves. म्हणजे हा जो एक याच्यातला जो एक त्यांना एक प्लांट घेतलं who was heterozygous dominant आणि दुसरं एक प्लांट घेतलं who was heterozygous dominant आणि त्या दोघांचं क्रॉस केलं. आता पटकन मला क्रॉस करून दाखवा बरं या दोघांचं. दोन्ही पेरेंट हेट्रोझायगस डॉमिनंट आहेत. कॅपिटल टी, स्मॉल टी. बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोझायगस. कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. पुनेट फॉर्म करा आणि जनरेशन्स काढा बरं. जिनोटाइप आणि फिनोटाइप पटकन काढा बरं. जमेल काढायला? Done, sir. वेट पार्थ, एवढं तू घाई करतोस आणि चुकतोस. थांब जरा. Sir, we have to tell the ratio. नाही, मला फक्त आता पुनेट मध्ये किती काय काय आलं ते सांगा. येस, कॅपिटल टी. येस, आदित्य उगले has written it. Who can write it? Who else got the same genotypes? Sir, I have messaged only to you, sir. So Okay, you have messaged it only to me. Fine. Okay. Anybody else try to get it? Sharanya has got it. Very good, Sharanya. Sharanya has also got it. Anybody else? Chalo, Diya Malpani. sir, Gariban. is my answer correct? Yes, your answer is correct. Let me see who else has written it fast. Chalo. Very good. Sharanya has given. Let me see who all have given. Aditya is given. Okay. Dhanashri is also correct. Okay. Diya Malpani दाखवा. नाही तर सांगा तरी आणि लिहा तरी, नाहीतरी पटकन मेसेज बॉक्स मध्ये. Sir, I have also sent. पार्थ, लेट मी सी. पार्थ कुठे आहे? आदित्य, पार्थ. Yes, Path, correct it is.
Those who are not able to write it, just send it. Renuka, very correct. Very correct. Heterozygous, you should mention what? Dominancy or non-dominancy. Homozygous dominant, heterozygous dominant, and recessive. Like that, you have to mention it. Okay? Ha. Very good. Very good. Very good. और कौन मेरे को दिखाएगा? Who else can? Sia, Isha. Isha, you have not shown me. You have not written it in the chat box also. Have you not solved it or what, Isha? Isha, then Garima, Diya, Gauri, Manthan, Gauresh, Devashri, Shivanjali, Nidhi Rathi. क्या है भाई? If others can do it, why can't you do it? सर पाठवला मी तुम्हाला. हाँ, correct है. I'm waiting for the others to give me the response. Wow, Sharanya, very good. Very good. Very good what you have done. Both phenotype and genotypic ratio are correct. Both phenotype. But you have to write, beta. You have to write how many are homozygous dominant, how many are heterozygous dominant, and how many are recessive. That you have to mention it. Sir, I have sent you the phenotype. Phenotype. Okay, let me see phenotype. Who's this? Who sent just now? Sir, Renuka. Renuka. Wait, you are Renuka. Renuka, this is not the phenotype. This is not the phenotype, beta. This is the genotype which you have sent. That is, one is homozygous dominant, two are. आणि फिनोटायपिक म्हणजे आपण बघितल्यानंतर आपल्याला कळतं की किती टॉल आहेत आणि किती ड्रॉफ आहेत. त्याला त्या रेशोला फिनोटायपिक रेशो म्हणतो. आणि त्या रेशो ते तू फिनोटायपिक जे पाठवलायस तो ऍक्च्युअली जिनोटायपिक आहे. इट्स नॉट फिनोटायपिक. सो करेक्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे किती होमोझायगस डॉमिनंट आहेत, किती हेट्रोझायगस डॉमिनंट आहेत, किती. Very correct, Shivanjali. Very correct. Very correct. Those all who have sent me the message in that you have just written the phenotypic ratio and genotypic ratio. In genotypic, you have to mention, and also in phenotypic, you have to mention how many dwarf, how many tall, how many homozygous dominant, how many heterozygous dominant, and how many recessive. So please try this. Chalo fast. If you have understood this much, then I would request you to open up the page. I am still not happy with Diya Malpani. Diya has not sent me anything. Garishma has not sent me anything. Dhanashri has not sent me anything. Sir, I have sent. Dhanashri, where have you sent, Baba? Dhanashri has sent. Dhanashri has sent. Manthan has not sent me. Manthan, I am not at all happy. Gauresh Karwa has not sent me. Nidhi Rathi has not sent me. Isha has not sent me. क्यों भाई तुम लोग को गरज नहीं लगती है? Others are sending and getting their answers corrected. You 3-4 people don't feel that you should send it, and you should not. और सब आ रहा है आपको. ठीक है, मर्जी आपकी, मैं क्या बोल सकता हूँ. Acha guys, then come to this part, to page number page निकाल दे. Okay. Figure number 3.6. वो जो चार्ट दिया है वो सब निकालो. सर बुक नहीं है. नहीं है का? अच्छा. Okay, then Sir, I'll can give you you. once repeat the answer, page number? Page number is 30. Yes, sir. हाँ, अभी जिसके Figure लिए 3.6. okay, fine, no problem. I am dictating you one sum. Okay, this is a type of sum. It will come in your saying. I'll repeat each sentence 3 times. Write down this sum and immediately solve and show it to me. In a pea plant,
in a pea plant, in a pea plant, in a pea plant, in a pea plant, a pure purple color flower plant, in a pea plant having pure purple color flower, pure purple color flower was crossed with a white flower, was crossed with a white flower in a pea plant having pure purple Yes, sir. color. Now, purposely I have not given you, wait, शुरू मत करो क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, घाई मत करो, रुको, मैं कुछ जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन दिया है और रुक जाओ, और वो कॉशन पॉइंट्स है वो एक साइड पे कहीं तो भी लिख लो. Is crossed with a white flower. Find the F1 generation. Find the F1 generation. Comment on the F1 gametes. Comment on the F1 gametes. Comment on the F1 gametes, comma, find the F2 gametes, find the F2 gametes, and write the genotypic and phenotypic ratio, and write the genotypic and phenotypic ratio. Have you all written down? कुछ मिस हो गया है इसमें से? No, sir, लिख लिया सर. सब, अगर सम लिख लिया है तो थम्स अप करो मेरे को. अगर सम लिख लिया है तो थम्स अप कर दो फटाफट. ईशा, धनश्री, अंजलि, शरण्या. अच्छा, अभी ऐसे वक्त जहां पे आपको गैमेट्स मैंने जानबूझ के नहीं दिए है, ये मेजॉरिटी टाइम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वहां पे एक क्लू होता है कि जिसमें आपको फाइंड आउट, आप इमीडिएटली समझ जाते हो कि किसको डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला समझना है और किसको रिसेसिव. जहां मैंने प्योर ये शब्द बोला, बराबर, दैट कैरेक्टरिस्टिक हैज टू बी टेकन एज डोमिनेंट, और उसका जो प्योर का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसको रिसेसिव लेना है. समझ में आया? अब अभी यहाँ पे क्या करोगे, आपने पी प्लांट्स देखे नहीं है लेकिन मैंने देखे एज बीइंग स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी. जनरली पर्पल कलर के फ्लावर्स ज्यादा रहते हैं. Yes, I have seen. तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और बहुत रेयरली व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, और आया भी तो उसको ब्लू कलर की टिंच रहती है ऊपर से, उसको व्हाइट कलर ही कहा जाता है. तो दिस इज वन वे ऑफ गिविंग यू. हम लोग बहुत सारा सॉल्व करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसके ऊपर. ओके, तो स्टार्ट इट. रीड वेरी केयरफुली व्हाट आई हैव गिवन. आपको क्या क्या करना है, आपको F1 जनरेशन तैयार करनी है, उसके गैमेट्स के बारे में, क्या गैमेट्स फॉर्म होता है वो देखने हैं, उसके प्रोजनी क्या होती है उसके ऊपर कमेंट करना है, यानी F2 जनरेशन क्या टाइप का है वो काम करना है, उसी को क्रॉस ब्रीड करके सेकंड रेशो में आपको जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना है. चलो शुरू करो फास्ट. Yes, sir.